ठीक है। क्रेनियल कैविटी नेचुरली सब डिवाइडेड इनटू द 3 फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल cranial fossa, and this one is the posterior cranial fossa. Okay, anterior cranial fossa, 3 natural divisions of the cranial cavity. Okay, the anterior cranial fossa, it is divided, it is separated from the middle cranial fossa through the lesser wing of the sphenoid bone. This is the lesser wing of the sphenoid bone, and this one is the anterior clinoid process, and this is the superior margin of the jugum sphenoidal या body of the sphenoid bone. ठीक है, this one is the middle cranial fossa. The middle cranial fossa, it is completed separated from the posterior cranial fossa through the superior border of the petrous part of the temporal bone. How many parts of the temporal bone? 3. This is the petrous part of the temporal bone. This is the squamous part of the temporal bone, and this is the mastoid part of the temporal bone. This is the mastoid process, nipple shape like structure. This is the mastoid part of the temporal bone. Externally, internally, this is the mastoid process of the temporal bone. Okay, this is the petrous part of the temporal bone. Petrous part of the temporal bone का anterior surface, posterior surface, and this one is the superior border. जो आपका middle cranial fossa, it is completely separated from the posterior cranial fossa through the superior border of the petrous part of the temporal bone, and this is the diaphragma sella, which is the part of the sella turcica. Sella turcica has 3 parts. This is the tuberculum sella, this one is the hypophyseal fossa, ठीक है, for the hypophyseal cerebri, for the pituitary gland, the pituitary gland lie in the hypophyseal fossa, and this is the diaphragma sella. ठीक, बात आती है फोरामिना पे। फोरामिना जो हैं सारे आपके क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, आपके वेसल्स जो होती हैं वो क्रेनियल कैविटी के अंदर तो नहीं रहेंगी, वो बाहर निकलेंगी। अब नर्व्स पूरी आपकी क्रेनियल नर्व्स, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स? 12 pairs, not 12 only, 12 pairs, right side as well as the left side. The first is the olfactory, second is the optic, third is the oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, आपकी जो है facial है, ग्लासोफेरेंजियल है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर है, वेगस है, एसेसरी, एंड द लास्ट इज द हाइपोग्लासल नर्व। सारी की सारी जो नर्व्स हैं वो बाहर निकलेंगी, कोई आई को सप्लाई करेगी, कोई नेजल कैविटी को जाके सप्लाई करेंगी, कोई मसल्स ऑफ द आई को, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ द आई उनको जाके सप्लाई करेंगी, टंग को सप्लाई करेगी, ईयर को सप्लाई करेगी, आपके नोज़ को, जितनी सारी नर्व्स हैं बाहर निकलेंगी वो सप्लाई करेंगी। ठीक, अब जो फोसा होते हैं ये आपका पूरा एंटीरियर क्रेनियल फोसा। The anterior cranial fossa, it is bounded anteriorly by the frontal bone. Front on each side. ये आगे से and sides में से आपका जो है वो frontal bone. फिर this is the frontal bone. ये आपकी पूरी की पूरी frontal bone है। ये यहाँ से आप पूरा देखेंगे तो frontal bone है, ठीक है। अब ये आपका anteriorly, posteriorly आपको मैंने अभी बताया, it is completely separated from the middle cranial fossa through the lesser wing of the sphenoid bone, anterior clinoid process and superior margin of the jugum sphenoidal या body of the sphenoid bone, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? This is the foramina cecum. This is the foramina cecum जो है वो imaginary veins जो होती हैं वो यहाँ से पास होती हैं, ठीक है। Occasionally जो होता है वो मतलब ओपन होता है, तकरीबन ज़्यादातर जो ये क्लोज होता है, ठीक है। ओकेजनली ये पेटेंट होता है। उसके बाद आपका दिस इज़ द क्रिस्टाइगेली। अच्छा, ये पूरा जो है दिस इज़ द क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन। अब क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन का मतलब है हम यहाँ से अगर कट लगाएंगे तो कहाँ जाके पहुँचेंगे, किस में पहुँचेंगे? नोज में। वेरी गुड, द नेजल कैविटी। यहाँ से हम कट लगाएंगे, यहाँ से जो स्ट्रक्चर जाएगा नीचे नोज में जाएगा। अब हम बोलें यहाँ से दिस इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन, अगर हम यहाँ से इसको कट लगाएंगे तो आई में, वेरी गुड, ऑर्बिटल कैविटी में जाएंगे, ठीक है। ये ऑर्बिटल कैविटी को कम्युनिकेट करता है, दिस वन इज द नेजल कैविटी को कम्युनिकेट करता है। अब ये पूरा आपका नोज है, नेजल कैविटी को नर्व सप्लाई, उनको आर्टरीज भी चाहिए, तो कहाँ से जाएंगी? बाहर से घूम के तो नहीं जाएंगी, तो यहाँ से आपकी जाएंगी। एंटीरियर इथमॉइडल नर्व, posterior ethmoidal nerve, anterior ethmoidal artery, posterior ethmoidal artery, these are the branches of the ophthalmic artery, ठीक है। ophthalmic artery आपकी जो है वो यहाँ से ब्रांच देगी, फिर जाके ऑप्टिक कैनाल में जाएगी, ठीक है। और ये दिस वन, ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटो इथमॉइडल सुचर। ये सारे जो हैं वो ऑरेंज कलर के, दीज आर द सुचर्स, दीज आर द इमोबाइल सुचर। बोन्स तो हमने इतनी सारी पढ़ी हैं भाई, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, स्फिनॉइड बोन है, इथमॉइड बोन है, जितने सारे बोन्स हैं तो ये आपका जो है वो सुचर्स बनाते हैं। दिस इज द
दिस इज द फ्रंटोइथोमाइडल सुचर, दिस वन इज द फ्रंटोइथोमाइडल सुचर। ये आपकी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन हो गई, एंड दिस इज द क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन। इथोमाइड बोन की और पार्ट्स कौन से हैं? दिस इज द क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन, एंड द लास्ट इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन। ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन जो मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी बनाती है। जब हम हेड एंड नेक हम पढ़ेंगे ना, तो आपको ऑर्बिटल कैविटी की बाउंड्रीज पढ़नी होंगी। दीज आर द मार्जिन्स and these are the floor, roof, floor, medial wall, and this one is the lateral wall of the orbital cavity. अब जाहिर सी बात है ऑर्बिटल कैविटी आपकी पूरी ये अंदर है। द कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी क्या है? खुद ऑर्बिट है, ऑर्बिट अंदर है, ऑर्बिटल कैविटी को पूरा वो द फिफ्थ जो पार्ट है वो ऑर्बिट जो है पूरा कवर करता है, ठीक है। 6 में से फिफ्थ जो पार्ट है, मतलब कहने का मकसद है कि 80% जो है वो आपका जो है वो ऑर्बिटस को कवर करता है, ऑर्बिटल कैविटी को। बाकी फिर आपके मसल्स आ जाते हैं, आपकी जो ऑर्बिटल फैट आ जाता है जो पूरे जो है ऑर्बिटल कैविटी को कवर करता है। उसको हम डिटेल में हेड एंड नेक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस वन इज द मिडिल क्रेनियल फोसा एंड दिस इज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक। पूरा आपका ब्रेन इसके अंदर लाई करता है। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? नर्वस सिस्टम कैसे डिवाइड होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। वेरी गुड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 क्रेनियल नर्व्स और 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा आपको फोरामिना के बता देता हूँ। फोरामिना सिक्कम, एंटीरियर इथोमाइडल कैनाल, पोस्टीरियर इथोमाइडल कैनाल, दिस इज द क्रिस्टाइगेली, दिस इज द क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथोमाइड बोन, ठीक है। और दिस इज द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन, सही है। अब ये आपकी जो है वो लेसर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन, जहाँ खत्म होती है वहाँ पे एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस बनता है, ठीक है। और ये आपकी लेसर ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन। दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. दिस वन इज सुपीरियर, दिस साइड दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब आप बोलेंगे इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ है? दिस इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये आपका इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। दिस इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, सब नजर आ रहा है? Yes, sir. दिस इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर नीचे से और ऊपर से आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फिशर मीन्स ओपनिंग, ऑर्बिटल मीन्स यहाँ से जो स्ट्रक्चर जाएगा वो ऑर्बिटल कैविटी के अंदर जाएगा, ठीक है। आपकी जो है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व है, एंड द ट्राइजेमिनल का ophthalmic division of the trigeminal nerve. These are the contents of the superior orbital fissure and the frontal, lacrimal, nasociliary branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. ये सारे नर्व्स जो हैं वो यहाँ से जाएंगे, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर जाएंगे। आपके पास ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर नर्व, these are the purely motor, जो आप आँख झपकते हैं ऐसे लेटरली झपकना अलग, जैसे हम लोग आगे देखते हैं, मतलब सुपीरियरली, इंफीरियरली, लेटरली, ये सारी जो मूवमेंट होती है ड्यू टू द मसल्स, ड्यू टू द मसल्स आपके सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, लेटरल ऑब्लिक, मीडियल ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड द लेटरल रेक्टस। इन मसल्स को जो सप्लाई करेंगी वो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड द ट्रॉक्लियर। आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो प्योरली सेंसरी है, जो आपकी विजन आप देखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आपकी ऑप्टिक नर्व की वजह से हम देखते हैं। बाकी आपकी नर्व जो जाएंगी वो आपकी प्योरली मोटर आपको सप्लाई करेंगी, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जस्ट पोस्टीरियर मीडियल इज द फोरामिना रोटंडम, ठीक है। फोरामिना रोटंडम, फोरामिना रोटंडम के जस्ट पोस्टीरियर मीडियल इज द फोरामिना लेसरम, दिस इज द फोरामिना लेसरम। दिखाएं थोड़ा व्यूज दिखाएं, जो व्यूअर ऑडियंस देखे। Yes, sir. आ रहे नजर। सर जो होल है ये है फोरामिना लेसरम। Yes, हाँ, sir. this और is सर the- वो कैरोटिड। अब वो आते हैं, उस पे आते हैं। दिस इज द फोरामिना लेसरम, ठीक है। मोबाइल वो थोड़ा जूम किया जाए कि ऑडियंस sir. देख सकें। दिस इज द फोरामिना ओवेल, दिस वन इज द फोरामिना ओवेल को ओवेल क्यों बोलते हैं? ये इसकी जो शेप है देखें, Oval ओवेल है। ओवेल की तरह। रबिया समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये लाइन कट कर देना, कोई बोलेगा रबिया का नाम क्यों लिया। दिस इज द फोरामिना स्पाइनोजम, फोरामिना स्पाइनोजम, फोरामिना ओवेल, फोरामिना रोटंडम, दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज द फोरामिना लेसरम, दिस वन इज द कैरोटिड कैनाल। ये कैरोटिड कैनाल जो है वो इंफीरियरली क्लोज्ड होता है, ठीक है, और सुपीरियरली आपको ये दिस इज द कैरोटिड कैनाल।
अब बहुत से बुक्स लिखते हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विच इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कहाँ पे होती है टर्मिनल ब्रांच, कहाँ बनती है? दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड की जो है वो 8 ब्रांचेस जो पूरे फेस को, ईयर को, नोज को, सबको सप्लाई करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी क्रेनियल कैविटी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोरामेना आपका, ये कौन सा फोरामेना है? हाँ, बताओ। वेरी गुड, दिस इज द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस, दिस इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। अगर हम कान को, ईयर को बाहर से अगर देखते हैं तो ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर की तरफ, एकॉस्टिक मीन्स आपकी जो ईयर की तरफ है, मीएटस मीन्स ओपनिंग, एक ओपनिंग है जो आपकी बाहर से अंदर तक जा रही है। दिस इज द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस। इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस में आपकी जो है वो स्ट्रक्चर जाएंगे, एक फेशियल नर्व जाएगी, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व जाएगी, एंड द थर्ड इज द लेब्रंथाइन आर्टरी। लेब्रंथाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द बेसिलर आर्टरी। दिस इज द जुगुलर फोरामेना। जुगुलर फोरामेना यहाँ पे आपका ये दिखाया हुआ है कि जुगुलर फोरामेना आपका जो है वो यहाँ से, ये आपका जो है वो आपका सिग्मॉइड साइनस, वेरी गुड, सिग्मॉइड साइनस। दिस इज द राइट ट्रांसफर साइनस, ठीक है, स्ट्रेट साइनस, और ये राइट ट्रांसफर साइनस आगे जाके ये जुगुलर फोरामेना बन जाएगा, और जुगुलर फोरामेना जो है वो कंटेंट हो जाएगा आपका, सॉरी, सिग्मॉइड साइनस जाएगा इसमें। जुगुलर इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस में आपकी जो है वो स्ट्रक्चर जाएंगे, एक फेशियल नर्व जाएगी, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व जाएगी, एंड द थर्ड इज द लेब्रंथाइन आर्टरी। लेब्रंथाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द बेसिलर आर्टरी। दिस इज द जुगुलर फोरामेना। जुगुलर फोरामेना यहाँ पे आपका ये दिखाया हुआ है कि जुगुलर फोरामेना आपका जो है वो यहाँ से, ये आपका जो है वो आपका सिग्मॉइड साइनस, वेरी गुड, सिग्मॉइड साइनस। दिस इज द राइट ट्रांसफर साइनस, ठीक है, स्ट्रेट साइनस, और ये राइट ट्रांसफर साइनस आगे जाके ये जुगुलर फोरामेना बन जाएगा, और जुगुलर फोरामेना जो है वो कंटेंट हो जाएगा आपका, सॉरी, सिग्मॉइड साइनस जाएगा इसमें जुगुलर फोरामेना में। इट लीव्स द क्रेनियल कैविटी एंड इट बिकम्स, वेरी गुड, इंटरनल जुगुलर वेन। तो इंटरनल जुगुलर वेन उधर बन जाएगी। दिस इज द हाइपोग्लासल कैनाल। द हाइपोग्लासल कैनाल आपकी जो है वो यहाँ से, जहाँ से आपकी हाइपोग्लासल नर्व आपकी जो है वो यहाँ से पास होगी, ठीक है। दिस इज द हाइपोग्लासल कैनाल। और ये तो फोरामेना मैग्नम है, ये किसी से भी आप पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। दिस इज द फोरामेना मैग्नम। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसमें से आपके कंटेंट्स जाते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कार्ड, वर्टिब्रल आर्टरी हैं, स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व है, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी है, एंड मेनिंजीज। तो 5 या 6 स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फोरामेना मैग्नम से होते हुए जाते हैं। जुगुलर फोरामेना से आपकी 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल। 9th इज द ग्लासोफेरेंजियल, 10th इज द वेगस, एंड 11 इज द एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व का क्रेनल पार्ट एक्सेसरी नर्व, और स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व ये यहाँ से जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर से जाएगा। स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व इज द कंटेंट ऑफ द फोरामेना मैग्नम, एंड द क्रेनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व इज द कंटेंट ऑफ द जुगुलर फोरामेना, ठीक है। और ये आपका ये जो फिशर है which lies between the occipital bone, ये पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, तो इसको पिट्रो वेरी गुड, द पिट्रो ऑक्सीपिटल फिशर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है वो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस जो है वो यहाँ से जाएगा, फिर वो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस यहाँ से जाता है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द, दिस इज द सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, इस तरह से। ये क्या है? दिस इज द क्लाइवस। क्लाइवस स्लोपिंग एरिया है, ये देखिए आप फिंगर से देख सकते हैं। दिस इज द क्लाइवस एंड स्लोपिंग एरिया। इसका काम क्या है? इट सपोर्ट्स द पोन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। पोन्स आपका जैसे हम रखते हैं तो यहाँ पे आपका पोन्स आएगा, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड बोन, इंक्लूडिंग द डायफ्राग्मा सिला एंड द बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। तो ये जाके आपका क्लाइवस इस तरह से जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये फोरामेना सिक्कम हो गया, एंटीरियर एथमोइडल कैनाल, पोस्टीरियर एथमोइडल कैनाल। दिस इज द ऑप्टिक कैनाल, जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये यहाँ से होते हुए जाएंगे। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया, एंड दिस इज द फोरामेना रोटंडम, फोरामेना ओवेल और फोरामेना स्पाइनोजम। This is the lacerum, foramina lacerum, and this is the carotid canal. This is the internal acoustic meatus. This is the jugular foramina, and this one is the hypoglossal canal, and this one is the jugular. Foramina magnum.
एंड दिस इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर ये हैं, और ये पूरा आपका बेस है, बेस ऑफ द स्कल बोलते हैं इसको, या नार्मा बेसिलस बोलते हैं, या इंफीरियर व्यू बोलते हैं। अब बात वही है कि ये आपकी टेरिगॉइड प्लेट आपने पढ़ा होगा, दिस इज़ द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, दिस इज़ द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, और ये पूरा का पूरा बोनी, और ये एक्सटर्नल तो हो गया। ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामिना, दिस इज़ द स्टाइलोमेस्टोइड फोरामिना। स्टाइलोइड प्रोसेस, द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन के बीच में जो फोरामिना होगा, इसमें बोलते हैं स्टाइलोमेस्टोइड फोरामिना। फेशियल नर्व यहाँ से निकलेगी, फेशियल नर्व तो बहुत बड़ी उसकी जो हो गया।